viewers, a very warm welcome to you all. This is Pallavi Shri and you are watching Study This, Study Fast, Be Smart. So let's start. Today I'm here with you to discuss a very important topic, that is law of demand. Now, what is law of demand says? This law states that there is an inverse relationship between price and quantity demanded of a commodity when other thing remaining constant. In simple way, we can say that higher the price, lower the demand. Lower the price, higher the demand. For example, when price will increase, definitely demand decrease. When price decrease, demand will increase. Now, what is the relationship between both the variables? The relationship between both the variable is opposite or inverse. Now, in case of opposite or inverse relationship, the shape of demand curve is what? Downward sloping demand curve. Now, अगर आपको ग्राफ नहीं आता है तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम ध्यान से समझो. दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ये क्या है? एक्स एक्सिस पे हम लोग वी विल अज्यूम डी डी मीन्स डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स. एक्स पसंद नहीं है, कुछ भी रख लो, मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन पुट इट हेयर. नाउ दिस वन इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में हम लोग क्या रखते हैं? डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्स. नाउ दिस इज वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में हम लोग क्या रखते हैं? प्राइस फॉर अ कमोडिटी एक्स, वट एवर यू वॉन्ट. नाउ दिस इज ओरिजिन. ओरिजिन यानी कि यहाँ पे क्या होता है? दोनों ही वेरिएबल का वैल्यू जीरो होता है. इस पॉइंट पे दोनों ही वेरिएबल का पॉइंट वैल्यू जीरो होगा. नाउ सपोज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 10 per kg, देन योर डिमांड विल बी 2 kg. For example, any of the commodity having price 10 rupees per kg, then you are demanding 2 kg of a commodity. Now, suppose when price fall and it become 5 rupees per kg, then your demand will be 4 kg. Now, अब देखो डिमांड अगर प्राइस घटेगा तो वो नीचे ही आएगा ना. तो यहाँ पे क्या हुआ? प्राइस पहले आपका 10 रुपीज था तो आप डिमांड कर रहे थे 2 kg. अभी आपका प्राइस क्या हुआ? 5 kg, तो आप डिमांड कर रहे हो 4 kg. अब देखो यहाँ पे जो आपका पॉइंट बना, इस पॉइंट को जब आप ज्वाइंट करोगे तो ये कर्व बनेगा, इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व. नाउ द डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग. व्हाई डाउनवर्ड स्लोपिंग? जस्ट बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है? एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है. अगर एक कम हो रहा है, देखो यहाँ पे प्राइस अगर नीचे डाउनफॉल हो रहा है तो डिमांड कहाँ हो रहा है? हमारा डिमांड अपवर्ड जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज का प्राइस कम होगा तो आप ज्यादा डिमांड करोगे या कम डिमांड करोगे? ऑफकोर्स ज्यादा डिमांड करोगे. और अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उसको कम यूज करोगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहा है, यानी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज downward sloping. According to this law, when price falls, demand increase. When price rise, demand decrease. Now, what it means? It means we can say that when other thing remaining constant, then increase in price, decrease in demand. Now, vice versa, ceteris paribus. What it means, ceteris paribus? It means what? Other thing remaining constant. Other thing remaining constant is also known as ceteris paribus. जब आपको इतना ना बोलना हो, when other thing remaining constant, increase in price, decrease in demand, vice versa. Vice versa means opposite, decrease in price, increase in demand. Now, so हम लोग इसे short कर सकते हैं. Definition of law of demand is increase in price, decrease in demand, vice versa, ceteris paribus. Now, ceteris paribus means what? When other thing remaining constant. Again and again, we are saying that other thing remaining constant. वो क्या है? It means law of demand में at a time only one factor will affect demand, that is price. Now what is the another factor? What are the assumption of law of demand? देखिए, जब भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हम बार बार एक ही चीज से बोलते हैं कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट. वो अदर थिंग्स क्या है? वी हैव टू अज्यूम कि कुछ चीज़ों पे कुछ असर नहीं पड़ता है, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है. लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप क्या होता है? प्राइस और डिमांड का. तो यहाँ पे क्या एज्यूम हमें करना होगा कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट. यानी कि आप एज अ कंज्यूमर आप सोचो कि आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ही आप प्राइस को देख के अपने डिमांड को फ्लक्चुएट कर रहे हो. देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर. ऑल्सो इनकम पे उनका कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी इनकम उनका कांस्टेंट है. पहले भी
जितना कमा रहे थे अभी उतना ही कमा रहे हैं, जितना इनकम पहले था उतना ही इनकम अभी है, तभी वो किस चीज पे जा रहे हैं, तभी हमारा एट ए टाइम प्राइस ही डिमांड को फ्लक्चुएट कर पा रहा है। प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, यानी एज्यूम ये भी करना है कि जो उसका रिलेटेड गुड्स का प्राइस है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए ये सब कुछ ऐसा ही रहे तो ही हमारा सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिमांड को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या है, व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, व्हेन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यही सारी अदर थिंग्स हमें एज्यूम करके चलनी होती है कि ये सब कांस्टेंट है। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंजेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। तो हमारे ये भी एजम्पशन रहता है उस टाइम की जो फर्दर चेंज हो सकता है प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल कि कल को प्याज 20 रुपये किलो और महंगा हो जाए, कल को पेट्रोल 2 रुपये लीटर और महंगा हो जाए, तो ये एजम्पशन लेकर हम चलेंगे तो हमारा डिमांड और प्राइस दोनों में वो रिलेशनशिप नहीं होगा जो लॉ कहता है। लॉ क्या कहता है, इंक्रीज प्राइस डिक्रीज डिमांड, डिक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है एजम्पशन, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर चेंजेस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि चीजें महंगी हो जाएगी। नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे आपको इन सारी चीजों के बारे में एजम्पशन लेकर चलना है कि इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि एट अ टाइम ओनली वन फैक्टर विल अफेक्ट डिमांड, अनदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।